वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IILM यूनिवर्सिटी। वैसे तो मैं इनके MBA PGDM के बारे में बात कर चुकी हूँ, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देयर BBA प्रोग्राम। अगेन, अगर आप अपने लिए BBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन है दैट मेरे बजट मेरी लोकेशन के हिसाब से कौन से BBA के कॉलेजेस सही हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो वी स्टार्ट दिस एपिसोड विद द हाईलाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. It's established in the year 1993. It's a private institution approved by AICTE. NBA का accreditation है, AIU का accreditation है, गुरुग्राम में located है. They also have their one more campus which is in Greater Noida, and they even offer BBA. I've recently been to ILM Greater Noida, and few years back I even visited Gurgaon campus. I like the vibe and especially like the location because पास में ही corporate है and you feel like you're in all total different world. बाकी traffic issue वो तो रहता ही है, but it's a beautiful place. First time when I visited Gurgaon, I feel like it's not in India. So two universities, ILM Gurgaon and Greater Noida. BBA के बारे में हम बात कर रहे हैं. दो तरह के स्टूडेंट्स हैं जो BBA के लिए एडमिशंस देख रहे होते हैं. The first kind of students जो अपने स्टेट में कम बजट में कॉलेजेस देख रहे होते हैं and they wanted to aspire for MBA. CAT के लिए प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा. And there are two second type of students which they want quality education, they want exposure, they want कि यार मुझे कुछ साल BBA के बाद जॉब करनी है, then I'll switch to MBA and stuff like that, because BBA के बाद MBA जो है वो कुछ point of time के बाद at a lot of situations लगता ही है. ये कुछ connectivity है, Sector 54 चौक बस स्टॉप, Sector 54 मेट्रो स्टेशन and इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, so they have various specializations, includes technology strategy, big data, cloud computing, and entrepreneurship, technology venture, introduction to fintech, introduction to machine learning and AI. So there's so many specialization. I mean, also there is general specialization. No, I think this is course curriculum, if I'm not wrong. This is introduction of a lot of things, but these are specialization, which is BBA honors general finance, HR, marketing, then BBA honors in entrepreneurship. That's basically course curriculum. It's not specialization. I'm so sorry. So that is basically program जहाँ पे BBA ऑनर्स कराता है जनरल फाइनेंस, HR, मार्केटिंग में कर सकते हैं. then BBA ऑनर्स एंटरप्रेन्योरशिप में, BBA ऑनर्स बैंकिंग फाइनेंस में, BBA ऑनर्स बिजनेस एनालिटिक्स एंड IBM में. मिनिमम 50% टाइम रिक्वायर्ड है, राइट. फर्स्ट ईयर 2 lakh, that means 2 4 8, if I'm not wrong, yes. So 8 lakh is basically the fee structure for general, for even entrepreneurship, even banking and finance, but business analytics with IBM, you need to pay a little extra, which is like 10 lakh rupees is a total investment excluding hostel fees, right? Other than this, there are more specialization, which is BBA in AI, right? BBA in international business, BBA in operations and supply chain, BBA in management technology. 50% टाइल आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं. कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन में यू कैन इवन गेट कूपन्स. उसको अगर आपको चाहिए तो नीचे एक फॉर्म का लिंक है जिसको फिल करके यू कैन आस्क फॉर कूपन्स जिन भी कॉलेजेस के लिए आप BBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. एक इंटरव्यू होता है एंड देन यू आर रेडी टू गो. फी स्ट्रक्चर क्वाइट सिमिलर. देन उसके बाद हॉस्टल फी, अवेलेबिलिटी, बॉयज हॉस्टल, डबल ऑक्यूपेंसी, AC 1,77,000, राइट. ड्यूरेशन 10 months. ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 1,37,000. सिमिलरली गर्ल्स के लिए है 1,37,177, which is quite similar to boys. मेरिट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, which is basically on your 12th का पर्सन. जैसे कि अगर आपका 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपका 98 एंड अबव एग्रीगेट होना चाहिए 12th क्लास में. 50% स्कॉलरशिप 90 से 97 के बीच में आपको मिलता है. CBSE स्पेसिफाई किया हुआ है या फिर ISC बोर्ड. 30% स्कॉलरशिप 85% एंड अबव अगर आपका 12th क्लास में है तो आपको मिलती है. 20% आपकी स्कॉलरशिप है अगर आपका 76 से 85.99% है, और आपको 10% स्कॉलरशिप मिलती है अगर आपका पर्सन 65 से 75.99 राइट है CBSE बोर्ड में, एक्सक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन, फाइनेंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, वोकेशनल एंड नॉन रिटन सब्जेक्ट. इसके अलावा CUET के बेसिस पे भी कई सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं. अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं, नीचे का फॉर्म फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. क्लब्स एंड सोसाइटी है. द कैंपस इज ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट. यू हैव ऑल दीज बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है. यू हैव ऑल दीज इंडोर एक्टिविटीज. द फैकल्टीज आर प्रीटी डिसेंट. इट्स जस्ट दैट आप BBA में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आप प्लेसमेंट चाह रहे हैं, आप प्लेसमेंट नहीं चाह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना पड़ेगा. अगर आप कंफ्यूज हैं दैट मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैं कौन सा कॉलेज टारगेट करूं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप रीच आउट कर सकते हैं. अब क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में देयर आर मल्टीपल क्लब, जैसे हाइकिंग क्लब है, फनवाइजर है, राइट, जुनून क्लब है, युवा गूंज है, राइट. तो यू कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दीज क्लब्स. एंड हाउ टू अप्लाई ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. एजुकेशन लोन भी मिल जाता है ये, इसके लिए यू कैन जस्ट चेक इट आउट. प्लेसमेंट्स की बात करें तो ये इनका MBA का प्लेसमेंट है, नॉट
फॉर BBA का आप 4-5 से लाख से ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मान सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग प्रोफाइल के स्टूडेंट्स हैं। बैच प्रोफाइल में अगर हम बात करें, ये भी आई थिंक MBA के ही स्टूडेंट्स हैं। ऑल इन ऑल दैट्स द टॉप रिक्रूटर्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस एपिसोड. लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.